Hello everyone. We'll start in a few minutes. Let some more people join in. All right. Yes. Just a minute. Good evening, everyone. Let's start. Okay, it is Snap Analytical and Logical Reasoning. Now, obviously, we know that Snap is an easy exam. Okay, just a minute. I'm not finding my pen. Okay. हाँ, so हमको ये पता है that Snap as an exam is definitely going to be easy. The level of questions and all that, okay, that you must have done for CAT and all that, उसके सामने Snap तो obviously बहुत ज़्यादा easy है. But yes, the challenge goes okay of 60 minutes में 60 questions करना है, ये challenge है. Now, why today's session is important? Okay, because it is dealing with the most heavyweight section of Snap. Okay, LR, okay, the logic part is total of 25 questions. Now, in a way, it is, I would say definitely it's a very good thing. Okay, and why would Snap do it? Okay, why has Snap kept logical reasoning section on a higher side? Because as you see the term analytical, okay, here, so Snap gives a good amount of weightage on these kind of questions, which is purely, okay, nothing but number based. ओके, नंबर बेस्ड. और जिसको मैं कि अपने वर्ड्स में अगर बोलूं तो मैं ये बोलूंगा जिसके पास भी नंबर क्रंचिंग का स्किल है, जो मैं हमेशा से स्टार्टिंग से बोलता था. ओके, people who are following me for all this preparation time, okay, you must have seen me telling you that number crunching is very important. Okay, so people who are good with basic number crunching, they will definitely have an advantage when it comes to the analytical reasoning part. ओके, लॉजिकल रीजनिंग तो तुम्हारा वही सब हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, फिर तुम्हारा ब्लड रिलेशन हो गया, वो सब जो जनरल चीजें हैं जो तुमने एनमैट के लिए, सीमैट के लिए, इस तरीके के एग्जाम के लिए भी तुमको करना ही है. ठीक है,
उसके अलावा जो यहाँ पे ज्यादा वेटेज आएगा वो है एनालिटिकल वाला पार्ट विच इज प्योरली नंबर क्रंचिंग. ओके, अगर नंबर क्रंचिंग का मतलब ये हुआ कि अगर तुमको नंबर्स आइडेंटिफाई करने में तुम फास्ट हो, तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर आता है तो उसके कोई भी नंबर अगर तुमको किसी स्क्वायर के आसपास का है, यू कैन आइडेंटिफाई देम फास्टर. ओके, कोई नंबर किसी क्यूब के आसपास का, यू कैन आइडेंटिफाई देम फास्टर. तुमको किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके माइनस प्लस करना है तो यू कैन आइडेंटिफाई देम फास्टर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नंबर क्रंचिंग. So if you are good at number crunching, definitely you will have an advantage in Snap. Okay, especially in the analytical reasoning section. Okay, the logical reasoning, analytical reasoning section, because I am telling you, out of 25 questions, you should expect at least of 5 to 6 questions pure AR. Okay, there's a chance that it can go more than that also, but yes, 5 to 6 तो कम से कम आएगा. एक बार ये पूरे सेक्शन का ना हम एनालिसिस देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या चीज इसके अंदर एक्सपेक्टेड है और कैसे क्या करना होगा. ओके, alright, so I think if I go to the next slide, okay, okay, just a minute, let me find some blank slide. Okay, yeah, okay, alright, so एक बार हम पूरा उसको समझ लेते हैं in terms of what all things can come in your in this 25, okay, in this 25 questions on LR. Okay, the logical reasoning section. Someone is asking what is the cutoff expected. Okay, there is no sectional cutoff as such. Okay, that you would get. Okay, you will always have a overall cutoff. Okay, and because of the overall cutoff, okay, definitely LR becomes even more important because LR is more number of questions. Your scope of getting higher score in this is much higher. Okay, now we are expecting somewhere around 18 to be a good marks here. Okay, with all the negative thing and all that, that means 25 में से हमको almost 25 अटेम्प्ट करना पड़ेगा या 22 या 23 के आसपास तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, so 22 भी अटेम्प्ट किया with like 90% accuracy where you have like gone only wrong in 2 or 3 questions at max. Okay, उससे ज्यादा नहीं. Okay, उससे ज्यादा नेगेटिव नहीं जाना चाहिए because every question is 1/4 negative, so 0.25 जाने वाला है. ठीक है, so if you're going like wrong in 3 questions also, okay, that is going to be what 18 minus like that. Okay, sorry, 19 minus like that. So you have to keep 18 as your target score. अच्छा, अब 18 अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. देखो, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आएंगे एआर के ऊपर व्हिच इज एनालिटिकल, लाइक नंबर बेस्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे. ओके, वी आर गोइंग टू सी दिस टुडे. ओके, यू विल गेट सम क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू बी इमेज बेस्ड. ओके, जिसको हम विजुअल रीजनिंग बोल सकते हैं, जो कि सीईटी में आता है. ठीक है, ये थोड़ा बहुत हमको आएगा यहाँ पे. विल गेट सम वेरी सिटर क्वेश्चंस व्हिच इज ऑन सीक्वेंसेस एंड ऑल दैट. ओके, ये बहुत ही इजी और सिंपल आएगा. ये 2-3 क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड हो सकते हैं. So this can go roughly around, let's say, 5 to 7 questions. Okay, this can go 2 to 3 questions. This can go to another 2 questions like that. Then you will get logical reasoning. Now logical reasoning के अंदर मैं traditional logic और puzzle सब मिला जुला के बोल रहा हूँ. Okay, वो तुमको करीबन 10 questions के आसपास आ सकता है. ठीक है, इसके अलावा critical reasoning आएगा. Okay, जो कि तुम्हारा 3 से 5 question के आसपास हो सकता है. ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन बोला मैंने, इसको तुम फर्दर डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, ट्रेडिशनल लॉजिक और पजल्स के ऊपर. ठीक है, पजल्स या बेसिकली अरेंजमेंट वाला. ठीक है, मेजरली जो आएगा वो अरेंजमेंट वाला ही आता है यहाँ पे. तो ट्रेडिशनल लॉजिक वुड बी लेट्स से 3 to 4 क्वेश्चंस. ओके, एंड इफ यू गेट 2 पजल्स, okay, then you will get a 6 to 7 questions like that. Okay, so depends. Okay, traditional logic and puzzles can go up and down. Okay, so approximately we are somewhere expecting this has to be the breakup. Okay, what should be the time allotment for LRDA out of 60 minutes? Okay, I'll come to that. Okay, एक बार हम पहले ये पूरा सेक्शन का अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हमको उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा. हमको ये भी समझना है दैट तुम्हारा स्ट्रेंथ कहाँ पे लाई करता है. यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट. ओके, कि तुम कहाँ पे अच्छे हो. ओके, कहाँ पे तुम अच्छा कर सकते हो. तुम एआर में अच्छा कर सकते हो, इमेज बेस में अच्छा कर सकते हो. कहाँ पे तुम अच्छा कर सकते हो, कहाँ पे तुम अच्छा नहीं कर सकते हो. दैट इज आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे तुमको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. सो यू शुड हैव दिस पिक्चर वेरी क्लियर कि यहाँ पे क्या तुम्हारे पास ये स्कोप आने वाला है कि वेर यू विल गेट टाइम टू कम बैक. ओके, यू विल नॉट गेट दैट टाइम. तो जो क्वेश्चन सामने आया उसको वही का वही हमको डिसाइड करना है कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है. करो अटेम्प्ट और आगे बढ़ो. ओके, नो कमिंग बैक. सोच के कि मैं वापस आऊंगा 1 घंटे के टाइम में, किधर 1 घंटा जाने वाला है पता ही नहीं चलेगा. ओके, और तुम्हारे पास स्कोप ही नहीं होगा वापस आने का. ओके, नाउ
first thing is this okay, these two areas which is the most heavyweight age area. एक है लॉजिकल रीजनिंग, okay, जिसके अंदर हमको बेसिक लेवल का अरेंजमेंट और ट्रेडिशनल लॉजिक मतलब वही तुम्हारे इनपुट आउटपुट, ओके, तुम्हारा सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें जो है वो हर टाइप के क्वेश्चंस करके जाओ, उसको मैसअप मत करना. The maximum like the main area where people mess up, okay, is AR. एआई में बहुत से लोग मैसअप करते हैं बिकॉज नंबर क्रंचिंग में बच्चे जहाँ वीक होंगे वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ओके, और फिर यहाँ पे उन लोगों को बहुत टाइम लग जाता है वो क्रैक करने में क्वेश्चन, एंड देन दे लीव इट, ओके. अच्छा, क्रिटिकल रीजनिंग, दिस इज easier, okay, this is easy, okay, so do not, there are certain people who kind of are scared of critical reasoning, but snap का critical reasoning तुमको थोड़ा easy आएगा. It is not going to be like nmat and all that. nmat ये सब थोड़ा थोड़ा difficult देता है, तो nmat टाइप नहीं आएगा. सीआर जो है वो स्नैप पर डेफिनेटली इजी होगा, जो कोर्स ऑफ एक्शन, ओके, ऑल ऑफ दैट, ओके, वो इजी होगा. सर वी कैन कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन. यस सृष्टि, वी कैन कम बैक. दिस इज not a computer adaptive test like nmat. nmat is computer adaptive, okay, तो adaptive में तुम पीछे नहीं जा सकते, ठीक है, बट दिस इज नॉर्मल लाइक तुम्हारा कैट जैसा पेपर है ये, ठीक है, तो यहाँ पे तुम, ठीक है. So okay, this is the important area. This is the important area of snap, okay, that I would want every one of you to make sure that तुम यहाँ पे कुछ मैसअप ना करो. देखो, इमेज बेस्ड थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो ये बहुत इजी लेवल का आता है, ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से श्योर शॉट है. सीक्वेंस वाला यार क्या ही होता है, खाली गिनती करनी होती है, यहाँ देखना होता है, तो श्योर शॉट है. तो मेरे हिसाब से इमेज बेस्ड, सीक्वेंस और सीआर, ये तो तुम्हारे लिए इजी है ही है, ठीक है. बट अगेन सेम टाइम ऐसा नहीं करना कि उसको एकदम इसको एकदम हल्के में ले लेना, ऐसा नहीं करना, ओके. सो गिव एटलीस्ट, ओके, गिव एटलीस्ट some effort there, okay, तो उसको प्रैक्टिस कर लो, ओके. बाकी जो हमको यहाँ काम करना है वो AR, ओके, के ऊपर काम करना है, हमको CR के ऊपर काम करना है, ये सब के ऊपर मेक श्योर करो कि यहाँ पे हमको सॉरी LR के ऊपर काम करना है, कि यहाँ पे हमारे मैक्सिमम मार्क्स निकलने चाहिए, बिकॉज ये सबसे दो हैवी एरियाज है, ओके. आई थिंक मैंने तुमको वो 25 क्वेश्चन का पूरा ब्रेकअप दे दिया कि किस तरीके से क्या आने वाला है, कैसे अटेम्प्ट करो एंड ऑल दैट, ओके. एटलीस्ट दैट पार्ट इज क्लियर. any questions right now here before we get into the questions and details and all of that? अभी कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो अभी पूछ लो थोड़ा, with regards to the attempt strategy, okay, with regards to time allotment. Yes, good, okay. So time allotment question, see, understand you are what I'll tell you which questions are not going to take much of time, okay. उसके बेसिस पे हम ओवरऑल निकालते हैं. जैसे कि अगर ये LR वाला पार्ट है, ठीक है, ट्रेडिशनल लॉजिक टिपिकली ये तुम्हारा लेस देन अ मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है. पजल्स को, ठीक है, अगर एक पजल आई तो वो मोस्टली 3 मिनट में निकल जाना चाहिए, तो ये पूरे 10 क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हारा मोटा मोटा मेरे हिसाब से 6 मिनट में ये निकल जाएगा, ठीक है. 6 मिनट में तुम्हारा LR वाला पार्ट निकल जाना चाहिए. सीक्वेंस तो क्या ही है, ये दोनों मतलब नहीं के बराबर है, तो मतलब अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, मतलब इमेज बेस्ड और सीक्वेंस के जो 5 क्वेश्चन देखेंगे, ये तुम देख के 2 मिनट में निकाल सकते हो मेरे हिसाब से. 2 से 3 मिनट ले लो, चलो 3 मिनट ले लो. 6 क्वेश्चन के पीछे यहाँ पे अगर आए 6 क्वेश्चन, ओके, तुम यहाँ पे 3 मिनट ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है. 3 मिनट का टाइम यहाँ पे गया, 6 मिनट का टाइम यहाँ पे गया, ठीक है. AR is going to be is will take some time, okay. CR is going to take some time, okay. So AR के अगर 7 questions आ रहा है, I would say you can put a 6 minutes overall here, okay. CR might take let's say a 5 minutes, okay, 4 to 5 minutes that you can say here, okay. So मोटा मोटा जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, this is what 10, okay, and almost this is also 10, so roughly around 20 minutes, okay. 20 minutes for 25 questions, okay, should be the target. अगर बढ़ाना है, okay, then you can do a plus 2 minutes, okay, but aim करो कि 22 मिनट्स में कवर कर दो यार, 22 मिनट्स में खींचने की कोशिश करो, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन जो बहुत फिटर होंगे, बहुत छोटे से होंगे, ठीक है. तुमको दिखेगा आज कुछ इसमें कि कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से होंगे, ठीक है. What topics are covered in AR? AR is analytical reasoning, okay, that is basically number वाला जितना भी है, so you can say those number series, okay. नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारे वो इस तरीके से मैट्रिक्स में आ जाता है, नंबर सीरीज, उस तरीके के क्वेश्चंस को बोलते हैं. तो एनीथिंग दैट डील्स विद प्योर नंबर्स, ओनली नंबर्स वाला हिसाब, ठीक है. साहिल, some of the questions you will see on coding decoding also which comes on number, you know that the transaction based coding decoding वो नंबर वाला होता है. तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, जहाँ पे वो नंबर वाला हिसाब चलता है, ठीक है. चलो, ओके. So how can we solve Roman number questions? Okay. Uh, Roman number questions. I don't know. You have to share some questions with me. Okay, I'm not sure with what is Roman number question as such. Okay.
सर व्हाट इज द कट ऑफ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ 60 फॉर 99 परसेंटाइल? वही है यार, 40 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए हम 40 बोल सकते हैं, बट इट रियली डिपेंड्स बिकॉज़ दिस इज अ न्यू पैटर्न, ओके, ऑफ स्नैप व्हिच हैज नेवर हैपेंड बिफोर, okay, as of now based on the previous year difficulty, okay, when we also sit to give papers, we also are able to solve to like get somewhere around 42 के आसपास, okay, so with that we are expecting कि 40-42 के आसपास होगा, okay, cut off, but obviously on the day of snap and snap exam happens, then we can tell you more about it, okay. All right, Sahil, if you have any of those questions, you can put a message to me on WhatsApp right away, I can check that. चलो, ये हमको ओवरऑल क्लैरिटी मिल गई। अब थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, एनालिटिकल, ओके, नंबर वाला सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वही चीज आई, ग्रिड का हिसाब है, ठीक है, नंबर्स दिया हुआ है, प्योर नंबर्स दिया हुआ है, एक नंबर कोई मिसिंग है, ये हमको ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, नंबर सीरीज के अंदर पीपल हैव अटेंडेड माय लेक्चर ऑन नंबर सीरीज, यू विल ऑलवेज यू विल रिमेंबर दैट पार्ट दैट आई टोल्ड दैट नंबर सीरीज इज वेयर यू नीड टू आइडेंटिफाई नंबर्स, ओके, यू नीड टू आइडेंटिफाई नंबर्स। अब जब नंबर आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये है कि यहाँ पे देखो कि ये मैट्रिक्स में या तो रो वाइज चलेगा, ठीक है, या कॉलम वाइज चलेगा, ठीक है, रो या कॉलम वाइज में से ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब जब रो कॉलम वाइज है अगर, ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक बार जज कर सकते हैं कि रो वाइज कुछ हो रहा है क्या। जैसे ये 272 को 156 और 342, ये मुझे ऐसे ही देख के लग रहा है कि मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही देखूँ उसको तो, ठीक है। तो 17 का 13, 13 का 19, ओके, आई डोंट सी, बिकॉज जो अगर मैं रो वाइज देखता हूँ तो जो ऐसे फॉलो हो रहा होगा यहाँ पे, वही सेम चीज यहाँ फॉलो होनी चाहिए, वही सेम चीज यहाँ फॉलो होनी चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि हर रो में अलग अलग चलेगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे 17 का 13, 13 का 19 होते हुए जो भी होगा वो सेम चीज, आई एम श्योर, ओके, वो 272 से 156 और 342 में नहीं बैठेगी। दैट मींस देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये जो है ये कॉलम वाइज होगा, यानी कि मैं ऐसे देखूं कि 17 का 272 कैसे हुआ और इसके बाद 306 कैसे हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वही चीज अगर मैं देखता हूँ 13 का 156 कैसे हुआ और थ्री, सॉरी, ये अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो अगर मुझे ये लॉजिक बैठ जाता है, ठीक है, अगर मुझे ये लॉजिक बैठ जाता है, ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एडवांटेज क्या है, यहाँ पे एडवांटेज है कि तुम्हारे पास यहाँ ये दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर है, ये भी दोनों नंबर है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ 17 का 272, 13 का 156, 19 का 242 कैसे हो सकता है, ठीक है, कैसे हो सकता है, व्हाट इज द वे दैट यू कैन हैव दैट, ओके, व्हाट इज द वे दैट यू कैन हैव दैट, ओके, 17 into 16, ओके, अच्छा, 13 into 12 भी हो रहा है क्या, वो 13 into 12 भी हो रहा है क्या? Yes, yes. In fact, okay, this is perfectly fine. Okay, 17 into 16. Okay, 13 into 12. Okay, 19 into 18. All that is matching. Okay, in the first two level. Okay, in fact, what the way I saw was also this way that 17 का square कितना आता है? Okay, 17 का square is 289. Okay, 289 से ये नंबर देखा मैंने, 272 दिखा मुझे, ये कितने का गैप दिखा मुझे, ये मुझे गैप ऑफ 17 का दिखा। तो मुझे ये भी होता है, ये भी है कि इट इज 17 स्क्वायर माइनस 17, विच इज मीन्स नथिंग बट 17 into 16 बोलो या 17 स्क्वायर माइनस 17 बोलो, वन एंड द सेम थिंग ही है, ठीक है। So because the number was very high, okay, I first looked at from the square, from the perspective of square, okay. Now definitely this is also good, okay, that you can, whenever you see a very high jump, it can be a case of multiplication, it can be a case of square, okay, all of this it can be। चलो ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, चलो 17 का हमको पता चल गया कि भाई 17 into 16 करेंगे तो 272 आता है। फिर ये 306 कैसे आ रहा है, ठीक है, 306 कैसे आ रहा है, एनीवन? यस, this time you are adding, okay, this time you are adding, which is another way you can multiply, okay, which is the same thing, मैंने इसके अंदर स्क्वायर के अंदर ऐड कर दिया, okay, तुमने स्क्वायर के अंदर एक नंबर से नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया, okay, that is how you are getting it, okay, cool। चलो, so what's the answer guys,
What is the answer? 182. Perfect. Perfect. Okay. People who are there, okay, others, okay, because I see that not many people have answered it. Okay. Other people who are there in the class, okay, are you guys clear? Azaruddin, Chandni, okay, Nikita, Pooja, सिद्धांत क्या हुआ समझ में आया नहीं समझ में आया तो टेल मी ओके आई टोल्ड यू फर्स्ट टू लुक एट रो वाइज ओके रो वाइज में दिख रहा है कि कोई कोई सेंस नहीं बना रहा तो मैंने कहा कॉलम वाइज देखो जब कॉलम वाइज देखने की बात आई ओके तो हमने यहाँ पे देखा कि 17 का 272 कैसे हो सकता है और 306 कैसे हो सकता है ठीक है जब नंबर इतना बड़ा हो रहा है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये कुछ मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर में हो रहा होगा ओके ऑलराइट सो this is what I saw okay that 17 square minus 17 because 17 square is 289 है okay which is nothing but the same thing कि 17 into minus 1 okay which is 16 okay ये भी करोगे यही आएगा सेम ही चीज है ठीक है सिमिलरली अगर ये मैं देखूं तो ये 289 से अप था ठीक है 289 से अप गया तो मैंने देखा कितना हुआ ये प्लस हो गया ठीक है so this time it is nothing but 17 into 18 and the same thing that you can do here okay 13 into 14 okay you will get the answer as 182 put a quick yes guys okay so that I'm sure that you guys have understood put a quick yes everyone chalo great okay and this is a common approach for these kind of matrix वाला question रो वाइज देखो कॉलम वाइज देखो ठीक है अच्छा उसके बाद नंबर बहुत हाई मार्जिन से बढ़ रहा है तो जैसे हम नंबर सीरीज में करते थे कि इंटू 100 या मल्टीप्लिकेशन वाला या स्क्वायर वाला या फैक्टोरियल वाला ऐसा कुछ होता है तो हम वो ट्राई करते हैं जब नंबर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वो प्लस या माइनस में से कुछ ना कुछ होगा ठीक है चलो नेक्स्ट वाला हाँ ये देखो यहाँ पे नंबर बहुत हाई मार्जिन से नहीं बढ़ रहे हैं दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे जो भी होना है जैसे वेरी हाई चांस कि स्क्वायर या प्लस माइनस के आसपास ही कुछ हो रहा होगा सॉरी स्क्वायर नहीं प्लस माइनस के आसपास टेल मी द आंसर हियर गाइस एनीवन Neha is saying 8. No, Neha, 8 is not the answer. 9 is the answer. Yes, good one. Good, I think. Okay, good. I think most of you are able to crack it. Okay. So 8 का 15 कैसे होगा 11 का 21 कैसे होगा okay see because the point is this whatever happens should be consistent okay whatever happens should be consistent 8 to the 16 minus 1 is 15 11 to the 22 minus 1 so that is double minus 1 okay 5 square is 5 into 2 is 10 minus 1 is 9 okay great chalo go to the next analytical reasoning Srishti, both way we can find. Yes, both way we can find. Okay, which is the row and the column wise. You mean Srishti? हाँ, you can find both. That's what I said ना. Row wise भी देखो, column wise भी देखो. कैसे fit हो रहा है उससे identify कर लो. ठीक है. But जो भी चीज है वो consistent होना चाहिए. ओके जो भी चीजें कंसिस्टेंट होना चाहिए ऐसा नहीं कि मैंने रो वन में कुछ और किया है रो थ्री में कुछ और किया है जो मैं रो वन में कर रहा रहूंगा वो सेम ट्रांजैक्शन रो थ्री में भी होना चाहिए ठीक है अगर वो कंसिस्टेंट है तो फाइन कंसिस्टेंट नहीं है देन यू कैन नॉट फॉलो दैट देन यू हैव टू लुक एट कॉलम वाइज वो एक्चुअली पहले बार स्कैन करने में समझ में आ जाना चाहिए कि आइडियली कैसे इसको सॉल्व करना है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस या नाउ हाउ डू यू सी दिस टेबल सर्कल में दिया है तो क्वाड्रेंट में ही कुछ ना कुछ आंसर होगा क्वाड्रेंट में आंसर होगा क्वाड्रेंट वाइज देखो क्वाड्रेंट वाइज okay someone said Harshal said 18 others are saying 8 yes others in the class quick answers on this
गुड वन, गुड वन। ऑलराइट, तो सी दिस काइंड ऑफ मेक्स इट इजी बिकॉज यहाँ पे तुमको ऐसे क्वाड्रेंट में देखना है। देखो क्वाड्रेंट वाइज देखो, ठीक है, क्वाड्रेंट वाइज देखो, ऐसे क्वाड्रेंट वाइज देखो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दो नंबर दिया है, फिर बीच में एक नंबर दिया, तो ऑब्वियसली ये है कि इन दोनों नंबर से ये बीच का नंबर आ रहा होगा। ये उनका स्क्वायर प्लस माइनस कुछ ना कुछ करके ये हो सकता है, ठीक है। अब 45 और 20 है, ठीक है, इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ कितना होता है, 25 डिफरेंस आता है। 25 और 5 का कुछ लिंक दिख रहा है, हाँ, 5 स्क्वायर इज 25। ओके, सिमिलरली 20 और 4 का मैंने डिफरेंस किया, कितना आया, 16 आया। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है। 120 और ये 20 है, इसका डिफरेंस ये कितना आता है, 100 आता है। 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। ओके, दिस हाउ यू सी द लिंक। तो जैसे मैं देखूं 90 और 26 का डिफरेंस कितना है, 64 है। 64 किसका स्क्वायर है, ठीक है, 8 का स्क्वायर है, दैट्स व्हाई द आंसर इज 8। Azruddin, how are you getting 11? Okay, is there any particular logic? Or Harshal, if you're getting 18, okay, you can share that so that in case there's some logic, okay, because there are times in these kind of questions where multiple logics also satisfy. All right, everyone clear? तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ये तुमको आने ही वाला है स्नैप में। ओके, इस तरीके से ग्रिड में दिया रहेगा, ठीक है। हर्षल, इट इज राइट, यस, इट इज राइट, यस। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो आने ही वाला है, पूछने ही वाला है। दिस इज गोइंग टू हैपन। ओके, सो practice this. Okay, now you might not get a lot of these kind of questions as such, okay, but ये तुमको नंबर सीरीज वाले वाले टॉपिक के जैसे ही है, तो नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन कर लो, आई थिंक यू विल बी गुड विद दिस। ओके, all right, yes. Okay, now we have coding. Coding which is based on numbers. Okay, इसको मैं ट्रांजैक्शन बेस्ड कोडिंग बोलता हूँ। Try this. Anyone getting answers? DIP is coded as 172203. Okay. Azuddin is saying second option. Anyone else? Nia says option number 3. DIP. न्यूमेरिक वैल्यू D का 4 है, I का 9 है, ठीक है, P का 16 है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू which is the numeric position value. ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ लिख रहा है यहाँ पे 172203 कुछ दिख रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ओके, 4 का 17 हो रहा है, तो कितना आ रहा है, +13 हो रहा है, ठीक है। 9 का 23 हो रहा है, +13 हो रहा है, यहाँ पे भी +13 हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया, आई का कुछ उल्टा हो गया, तो पी का कुछ उल्टा हो गया, ठीक है। अच्छा, लेट अस सी। ओके, हम टेक के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन बैठ सकता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, जब हम टेक के लिए करते हैं, ओके, यहाँ पे भी जो हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम उससे देखें, people are saying option number 3 and 4. Okay, guys, right now I'll just tell you to focus on what I'm doing, okay, so that at least समझ में आए कि हम कैसे निकाल सकते हैं, because this is a tricky question. Okay, as such, कोई भी क्वेश्चन अगर 1 मिनट से ज्यादा ले रहा होगा तो तुमको वो सीधे स्किप कर देना, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आए, इस टाइप का भी क्वेश्चन है जो नहीं क्रैक हो रहा है टाइप,
1 मिनट से ज्यादा ले रहा है, स्किप करो उसको। 1 मिनट तक पूरा दिमाग लगाओ, सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई करो, बट 1 मिनट के बाद स्किप कर दो, ठीक है। 1 मिनट के बाद नहीं होना चाहिए। तो लाइक k इज गोइंग टू बी 11, ओके, एंड देन e इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास कुछ +13 मैंने 2 बार देख लिया। यहाँ पे नहीं बैठ रहा है +13, ओके, पी के केस में +13 नहीं बैठ रहा है, लेकिन बाकी 2 केस में +13 बैठ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे देखो +13 में सब में लगाने का देखता हूँ क्या होता है, देखते हैं कि यहाँ पे 18 आएगा, ओके, यहाँ पे जाएगा, ओके 13, ओके, यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ 30 के ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो 142418, 142418 ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 142418, ओके, यहाँ पे आया, ऑप्शन नंबर 3 में आया 142418, यहाँ पे भी आया। अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रहा, चलो ये हट सकता है, ये हट सकता है। अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से कुछ ना कुछ चलेगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से कुछ ना कुछ चलेगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। क्योंकि बिकॉज +13 नाउ हियर इट इज नॉट मैचिंग, हियर इट इज नॉट मैचिंग, ओके, ये भी नहीं। इसके अंदर हमको क्या, देखो अभी यहाँ पे हर्षल ने क्या लिखा है, फर्स्ट 13 लेटर प्लस एंड अदर माइनस, ओके। यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ +13 किया था, यहाँ +13 करके देखते हैं कितना हो रहा है। +13 क्या, कितना आएगा यहाँ पे, 29 आएगा। ये 29 की जगह लोगों ने 03 क्यों लिखा है, चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, +13 करेंगे कितना आएगा, 33 आएगा। ये 33 के जगह पे यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 07 है। अब 33 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 33 हो रहा होता, ठीक है, तो यहाँ पे 29 होना चाहिए था, राइट। ऑप्शन नंबर 3 को मैं कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ, मुझे अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना कि ये क्या माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, ठीक है, बट मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर पी के लिए मैं सेम चीज कर रहा हूँ तो 29 आ रहा है, और 29 कोड में नहीं है, यहाँ पे 03 यूज किया है, ठीक है। तो अगर मैं सेम लॉजिक यहाँ 20 के लिए अप्लाई करूँ तो 33 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, तो वो तो चीज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे भी नहीं हुई है। तो मैं उस बेसिस पे आइडियली थर्ड को निकाल दूंगा और मैं सेकंड को मार्क करूंगा। दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू डू, ओके, वी हैव टू बी क्लियर एटलीस्ट कि जो क्वेश्चन में हो रहा है वो चीज तो यहाँ होना चाहिए, जब क्वेश्चन में नहीं हो रहा तो यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने कर दिया, जहां तक कि मुझे अगर पूरा लॉजिक भी नहीं समझा कि पी में के साथ क्या हुआ है, टी के साथ क्या हुआ है, ठीक है। नाउ दिस इज एज सच अ ट्रिकी वन, ओके, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, जब भी नंबर 26 के ऊपर गया है तो उन्होंने -26 कर दिया है, जिसका वैल्यू 03 आया, ठीक है। यहाँ भी अगर मैं -26 कर दूं तो मुझे वैल्यू 07 आएगी, ठीक है। बट आई वुड से यस दैट्स अ लिटिल ट्रिकी थिंग टू अंडरस्टैंड, ओके, बट मैं अगर वो नहीं भी समझता हूँ तो जो चीज समझता हूँ उसके बेसिस में एक स्मार्ट गेस करके निकल सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है तुम्हारा, ओके, तो उसमें जितना सॉल्व होता है उस बेसिस पे जो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो उसके बीच में कुछ स्मार्ट गेस करके यू कैन डू इट, ओके, क्लियर है, समझ में आया सबको? पुट अ क्विक यस गाइस, पुट अ क्विक यस इफ यू गाइस आर क्लियर विद इट, quick yes everyone, and someone is not understood, okay, you guys you can definitely ask me. Yes, I think okay, there are more people in the class. Harshal, okay, first 13 plus, yes Harshal, that is right Harshal. ठीक है, साहिल आई क्लियर, नेहा क्लियर है, एवरीवन, ओके, चलो विल गो अहेड। ये ट्राई करो अगेन, नंबर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बट थोड़ा नंबर बेस्ड है, ठीक है, क्या होगा इसका, ट्राई करो। Azruddin is saying option number 1. अदर देखो कहीं कहीं नंबर यूज किया है, थोड़ा सोचो कि नंबर कहाँ यूज किया, नंबर कहाँ यूज किया वो देखो, उससे थोड़ा तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है, 437, ओके 7 वो है, यहाँ पे भी 7 है। नंबर यहाँ पे आया है, नंबर यहाँ पे आया है, नंबर यहाँ पे आया है, तीन जगह नंबर आए हैं। ठीक है, ये 252 तीन जगह नंबर आए, और ये तीनों जगह क्या है, ये तीनों जगह वॉवेल है, ये तीनों जगह वॉवेल है, देखो ई, यू एंड ई, तीनों जगह वॉवेल है। तो वॉवेल की जगह पे नंबर आए हैं। ठीक है, अच्छा नंबर किस बेसिस पे आया है, क्या हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस बेसिस पे नंबर आया है? Numbers are ordered as per their yeah, number vowels are numbered as per their order. Good one. Okay, so A, E, I, O and U. Okay, ये तुम्हारे vowels हैं। मैंने यहाँ पे जो नंबर, इन्होंने जो यहाँ पे नंबर डाला हुआ है क्वेश्चन में, वो उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं डाला है, वो वॉवेल्स के ऑर्डर में डाला हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज नंबर एज 1, 2, 3, 4 and 5 like this. Okay, so what happens, E is coded as 2. Okay, E is coded as 2, दो बार देखो 2 आया है इसलिए यहाँ पे। ठीक है, U is coded as 5. Getting it? Now I think अगर तुमने उतना भी क्रैक कर दिया तो बाकी छोड़ो, आंसर आ जाएगा। कितना क्या आंसर आ रहा है अभी? ऑप्शन नंबर 3, मयूर एंड नेहा से ऑप्शन नंबर 3, गुड वन, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। अदर्स, सिद्धांत समझ में आया क्या हो रहा है? And I hope, okay, so I have taken some questions which are a little tricky, okay, so that you also understand that कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, एक में से ज्यादा लग रहा है, तो तुमको वो चीज बहुत कॉन्शियसली वो करना होगा, कॉल लेना होगा कि जहाँ पे तुम उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, पर ये इंटेंशन यहाँ पे सिखाने का ये नहीं है कि तुमको क्या स्किप करना है, पर इंटेंशन ये है कि तुमको क्या पढ़ लेना चाहिए आज की डेट में। ठीक है, आज की डेट में क्या पढ़ लेना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अगर तुमने इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ी हुई है तो मेक श्योर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दो। ओके, सो दैट तुम्हारा नंबर सीरीज या इस तरीके की कोडिंग है या बेसिकली नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अच्छे हो जाए। ठीक है, चलो ये देखो, ये भी एक एनालिटिकल रीजनिंग का, ये भी बहुत कॉमन है, हर साल ही आता है, ऑलमोस्ट हर साल आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर साल आता है। क्या इसका आंसर, एनीवन? In the following figure, the pentagon, the rectangle, the triangle, and the circle represent a number of students in a class who play cricket, soccer, hockey, and baseball. ठीक है, which of the sport is played by the maximum number of students? अभी यहाँ पे मुझे क्या ऐड करते बैठना है क्या? क्या मैं यहाँ पे ऐड करते बैठूंगा? इतना टाइम है मेरे पास, इतने सारे नंबर है, मैं हर एक का नंबर निकाल के ऐड करते रहूंगा? हाँ, इतना टाइम है मेरे पास? इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? Neha is saying cricket, Azruddin is saying two. हाँ, तो कैसे निकालेंगे ऐसे केस में आंसर? ऐसे केस में हम विजुअली देख के आंसर निकाल सकते हैं, विजुअली देख के आंसर निकाल सकते हैं। क्या विजुअली देखना है यहाँ पे? भाई मुझे पता है कि मैक्सिमम पूछा गया है मुझसे, उससे मैक्सिमम पूछा गया है। जब मैक्सिमम पूछा गया है तो जहाँ पे ज्यादातर जो बड़े नंबर यूज हुए हैं उनको देखता हूँ मैं। ज्यादातर बड़े नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर ये है 11 है, फिर ये 10 है, फिर यहाँ पे ये 9 दिख रहा है, फिर ये 8 आया, फिर ये 8 आया। ठीक है, फिर देखो ये 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे 9 है। ठीक है, बट ज्यादातर बड़े नंबर तुमको कौन से फिगर के अंदर दिख रहे हैं? ज्यादातर बड़े नंबर तुमको कौन से फिगर के अंदर दिख रहे हैं? पेंटागन के अंदर तुमको ज्यादातर दिख रहे हैं। ठीक है, अगर तुम देखोगे, देखो रेक्टेंगल के अंदर ये 10, 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल के अंदर देखोगे तो ये 11 ही आया है, लेकिन ये 10, 8 ये सब नहीं आया है। तो ज्यादातर बड़े नंबर तुमको पेंटागन में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली पेंटागन का जो टोटल होगा वो ज्यादा होगा। ओके, पेंटागन का टोटल जो है, ओके जस्ट अ मिनट, सम पीपल आर जॉइनिंग बैक। ओके, हाँ, सो पेंटागन का टोटल सबसे ज्यादा होगा। पेंटागन क्या होता है अभी? पेंटागन जो है वो क्रिकेट होता है। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस इज क्रिकेट। ठीक है, फटाफट इसको मार्क करो, आगे बढ़ो। ये सब क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेने वाले नहीं है, ये सब क्वेश्चन तुमको मेरे हिसाब से 30 से 45 सेकंड के बीच में इसको करके खत्म करना चाहिए। अगेन देखो, प्योर नंबर वाला हिसाब है। ठीक है, नंबर्स के साथ देखो, नंबर्स आइडेंटिफाई करो। ओके, एंड नंबर्स को सॉर्ट करो अपने दिमाग में। ओके, नो कैलकुलेशन एज सच हैवी रिक्वायर्ड, सिर्फ थोड़ा थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूजिंग नंबर्स। थोड़ा नंबर्स को स्मार्टली यूज करना आ जाएगा
तो स्नैप निकल सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले क्या बोथ क्रिकेट सॉकर बट नीदर हॉकी नॉर बेसबॉल? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसमें हमको देखो क्या करना है। क्रिकेट सॉकर में आना चाहिए, बाकी दो में नहीं आना चाहिए। यानी कि किसके बीच में आना चाहिए अगर मैं देखूं तो? क्रिकेट सॉकर का कौन सी दो चीज दिखाते हैं? पेंटागन और रेक्टेंगल। ओके, क्रिकेट सॉकर यही दिखाते हैं। तो पेंटागन रेक्टेंगल में कॉमन क्या है? 7। ठीक है, बस सिंपल है, इन दोनों में आना चाहिए, बाकी दोनों में नहीं आ रहा, 7 ही है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में? हार्डली कुछ टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि 25 क्वेश्चन को 20 मिनट का टाइम वहां पे टारगेट रखो। थोड़ा बड़ा तो 22 मिनट्स, बिकॉज क्वांट्स में तुम यूजुअली खींच दोगे टाइम। क्वांट्स में डीआई में तुम्हारा टाइम शायद थोड़ा ज्यादा चला जाए। ठीक है, तो क्वांट्स के अगर वहाँ पे 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे शायद तुम्हारा 20 मिनट चला जाए या 25 मिनट चला जाए। ठीक है, तो अगर 25 मिनट्स वहां पे गया, ओके, 20 मिनट्स यहाँ पे गया और 15 मिनट वर्बल में गया, आई थिंक दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, ठीक है, चलो। How many students play exactly 3 of the 4 sports? Okay, तो तीन ही, यहाँ 4 वाला स्पोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, 3 वाला स्पोर्ट चाहिए। अब 3 वाला मतलब ये है कि भाई 3 नंबर जहाँ पे मैच, 3 फिगर जहाँ पे कॉन्साइड हो रही है वो चाहिए होगा। ठीक है, जैसे कि ये 3 वाला कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, देखो ये 6 दिख रहा है मुझे। ठीक है, हो रहा होगा। ठीक है, ये वाला हमको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये हो रहा होगा 3। ठीक है, सर्कल में आ रहा है, पेंटागन में आ रहा है, ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 3 है, 4 वाला नहीं लेना। 4 वाला मतलब 11 जो है ये 4 वाला है। ठीक है, ये 4 में जा रहे हैं। पेंटागन में भी है, रेक्टेंगल में भी है, सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है। तो वो ध्यान रखना। तो इस हिसाब से फटाफट ऐड करो नंबर्स को देख के। ठीक है, यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक किसी कोई चीज नहीं करते ना, यहाँ पे बहुत से बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो सिली मिस्टेक किसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। माय पेन किधर गया? हाँ, हाँ भाई, क्या आंसर है? 18, 21। हाँ, मतलब मैंने पूरा वो नहीं किया है कि 21 इज द आंसर, बराबर। ठीक है, ये 8 भी है। ठीक है, 4 भी है वहाँ पे। ठीक है, 21 इज द आंसर, गुड वन। ओके, आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट। ओके, वी आर लुकिंग एट द डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। सृष्टि, वी जस्ट आई जस्ट सर्कल्ड इट। आई जस्ट सर्कल्ड इट, इफ यू सी 6, 3, 4 और 8। देखो मैंने सर्कल किया हुआ दिख रहा है सृष्टि? those 4 numbers, okay, are there in exactly 3 figures, if you see 3 figures के अलावा कहीं भी नहीं है वो, चौथे में नहीं है। देखो ये 3, समझ में आया? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन क्लियर टिल नाउ हियर? पूरा यस, मैं बीच बीच से पूछता रहूंगा, ऐसे पूरा कोई यस। ठीक है, because I just want to make sure that anyone who is not understanding should be also there with us. चलो ग्रेट, गुड वन गाइस। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। हाँ, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन आइडियली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ज्यादा खा जाएगा। तो मैं इसको मोस्टली हो सकता है कि या तो इसको स्किप कर दूं अभी के लिए। ठीक है, या अगर लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट ला सकता हूँ तो ही मैं ट्राई करूंगा इसको। हाँ बताओ। देखो यहाँ पे मुझे ऐड वैड करना पड़ेगा। अगर तुम नंबर्स को ऐड करने में फास्ट हो तो तुम ये इसको कर दोगे। पर अगर तुम नंबर्स ऐड करने में फास्ट नहीं हो ना तो तुमको टाइम लगेगा। सिंपल नंबर्स को ऐड करना है और ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, एटलीस्ट पूछा है यहाँ पे एग्जैक्टली पूछा है, यहाँ पे एग्जैक्टली पूछा है, यहाँ पे एटलीस्ट पूछा है, तो वो ध्यान रखना है। Nia says option number one. Azruddin also says option number one. Others, anyone, any answer? Anyone, any answers? Nia Azruddin, that's not the right answer. एक बार फिर से देखो, अच्छे से देखो।
So number of students who play at least, yes, option number 4 is the right, good one. Okay, let me just, okay, ठीक है, यहाँ पे अभी आपको मुझे आपका कमेंट नहीं दिख रहा है, बट लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन सो दैट हम बाद में कमेंट देख सकते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ जाओ कि क्या हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ हॉकी और बेसबॉल, ओके, एटलीस्ट पूछा हुआ है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से अगर हम देखेंगे, ठीक है, हॉकी कौन सा है, हॉकी इज गोइंग टू बी योर ट्रायंगल, ओके, एंड योर यू हैव बेसबॉल विच इज गोइंग टू बी सर्कल। तो मुझे ट्रायंगल और सर्कल पे ही फोकस करना है, ठीक है, ट्रायंगल और सर्कल में फोकस करना है। तो यहाँ से हम क्या उठाएंगे, यहाँ पे 7 उठाएंगे, यहाँ से हम ये 8 उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन वाला पार्ट है उसको भी हमको एक बार उठाना पड़ेगा और ये वाले नंबर उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये 4 नंबर जो है ये है, और 9 है, ठीक है। इन सारे नंबर्स को ऐड करो, इन सारे नंबर्स को ऐड करके कितना आएगा, देखो 66 आना चाहिए इन सबको ऐड करके, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे बराबर से, सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज कि भाई कौन सा नंबर मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल और सर्कल का मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, बिकॉज इधर है तो इसका मतलब अंदर के सारे नंबर जो होंगे मुझे वो सब लेने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, ठीक है। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का बहुत सिंपल है, जहां जहां नंबर 2 फिगर्स पे ही वो हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये 7 हो गया, ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर इट वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। 2 स्पोर्ट वाले जो नंबर है, ठीक है, उनको अगर उठाना हो तो जैसे ये 7 आ गया, ठीक है, जैसे ये 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हमको ऐड करते रहेंगे, ओके, दिस इज इफ यू सी यू विल एंड अप गेटिंग this as, okay, now this is also 5, okay, you will end up getting this as close to around आना चाहिए, 7 + 8 यहाँ पे ये भी है, ओके, यस, तो ये आ रहा है हमको 25 के आसपास, okay, ज्यादा नंबर आगे नहीं जाएगा, 25 आएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमें 25 आ गया सेकंड वाला, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली वन ऑफ द 4 स्पोर्ट्स, ओके, एग्जैक्टली वन पूछा गया है यहाँ पे। अभी वन मतलब तो भाई ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ठीक है। अब मुझे वैसे भी समझ में आ रहा है कि 60 के ऊपर तो नहीं जाएगा, तो मैं इसको आगे नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों तो हट गए मेरे, अब मुझे 1 और 4 में से देखना है, फोर्थ वाला बन सकता है क्या, ठीक है, अगर फोर्थ वाला बन सकता है तो ठीक है, वरना मैं 1 को मार्क करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे नंबर थोड़ा ज्यादा हैवी दिखेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, अगर नंबर मुझे बहुत ही कम से लगेंगे तो मैं शायद नहीं चेक करूँ, ठीक है। जस्ट ओके, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ, ओके, अब देखो क्रिकेट और सॉकर बोल दिया इस बार, क्रिकेट सॉकर बोला यानी कि पेंटागन और रेक्टेंगल, इसका पूरा नंबर उठाना है, तो मतलब ये नंबर उठाना है पूरा, ठीक है, और ये नंबर उठाना है पहले, ये नंबर, और यहाँ का नहीं, ओके, इतना पूरा उठाना पड़ेगा। अब यहाँ चांसेस काफी है कि ये अच्छा बड़ा नंबर आएगा, तो इसको चेक करो एक बार, ओके, दिस नंबर विल कम डाउन टू समवेयर अराउंड 71, ओके, इसको टोटल ऐड कर लो, ये ओके 71 आएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द हाईएस्ट, ठीक है, क्लियर है गाइस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे तुमको नंबर्स, ऑब्वियसली, ओके, एनालिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट में तुमको नंबर्स थोड़ा फटाफट करना आना चाहिए, तो कोशिश करो यहाँ पे, ओके, इनफैक्ट कि अपने नंबर क्रंचिंग इंप्रूव करो, ठीक है। नंबर क्रंचिंग कुछ नहीं है, सिंपल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, 30 मिनट 60 कैलकुलेशन, मैंने हर बार बोला है, वही चीज करो यहाँ पे। अगर 30 मिनट 60 कैलकुलेशन करने का आदत है, किया है बैक टू बैक, ओके, फॉर क्वाइट सम टाइम, ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। आर यू गाइस क्लियर, ओके, आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस, ओके। चलो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आई थिंक ये भी वही है, चलो इसको हम स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो ये क्या आ गया, ये भी एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। ये एक्चुअली बॉड मास बेस्ड क्वेश्चन है, ये बॉड मास बेस्ड क्वेश्चन है। बॉड मास, हम्म, P means division, T means addition, M means subtraction, D means multiplication, ओके। फिर हमको इसकी वैल्यू निकालना है, सिंपल है, कुछ नहीं, उसको चेंज करो, ओके, जहां जहां पे वो P D
ये सब चीजें दी हुई है, ठीक है, उसको चेंज करो एंड गेट द आंसर। ठीक है, डी मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, पी मीन्स डिवीजन है, ओके, टी मीन्स एडिशन है, डी मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, पी मीन्स डिवीजन है, ओके, ये है। गुड वन मयूर, गुड वन। तो कुछ नहीं, इसके अंदर हम बिना नंबर्स के भी हम कर सकते हैं, बिना सॉरी बिना पेन के भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, बिना पेन के भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर तो वही चीज वापस से वही चीज, प्योर नंबर क्रंचिंग होना चाहिए। हम्म। आ रहा है नहीं आ रहा है? 8 into 16, okay, divide by 32 plus 16, okay, into 32 divide by 64। अब अगर तुम देखोगे ये जो चीज है डिवाइड बाय 32, इसको चाहिए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच इज नथिंग बट इंटू 32, राइट, इंटू 1/32। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कैसे कर सकता हूँ, उससे कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी पड़ जाता है। इंटू 1/32 हो जाएगा, ये इंटू 1/64 हो जाएगा, राइट। और हमारा रूल क्या है, अब मैंने डिवीजन निकाल दिया, बॉड मास। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर तो लास्ट सबसे पहले ये खत्म करो, ये खत्म करो, लास्ट में एडिशन कर दो। ठीक है, वन जा टू जा, ठीक है, वन जा टू जा, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, यहाँ पे ये 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, 8 + 4, ओके, आंसर इज 12। ओके, नॉट मेनी पीपल आंसर्ड इट, ओके, सो मतलब समझ में नहीं आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, डिफिकल्ट लगा था? अच्छा, डिफिकल्ट नहीं है सृष्टि, हाँ, नॉट डिफिकल्ट। यार ये पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि डिफिकल्ट कुछ आने वाला है। स्नैप है, 60 मिनट, 60 क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, बस ये है कि हाँ, लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है, वो करना पड़ेगा, अगर लॉजिकली सोच पाते हो, ठीक है, उतने कम टाइम में, तो फाइन, और उसी को हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो। और इनफैक्ट मैं बॉड मास वाले क्वेश्चन में हमेशा यही बोलता हूँ कि जो डिवीजन वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया करो, इजी पड़ेगा। ठीक है, इजी पड़ेगा। चलो, हाँ, ये भी एक बहुत ही नॉर्मल सा, मतलब क्यूब्स, कैलेंडर, क्लॉक, ठीक है, ये बहुत कॉमन है, ये सब भी आने के लिए बहुत कॉमन है। चलो ट्राई करो, tell me what's the answer। Okay, I just get some water meanwhile, get the answer for this। It's a very easy question। अगर स्क्वायर, अगर क्यूब पढ़ा है तो, क्यूब हमने एमबीएपी में तो कम से कम जब स्टार्ट भी कराया था। Azharuddin says option number 2। only one person has answered till now। Two adjacent faces of a cube is painted red, okay, out of the remaining two opposite faces are painted green। तो हम कैसे करते थे इसको, क्यूब बनाया हमने फटाफट,
क्यूब बनाया ऐसा, ठीक है। क्यूब में बोला दो एडजेसेंट क्या है, रेड है, यानी कि इसको रेड ले लो, इसको रेड ले लो, एडजेसेंट वाले, ठीक है। बाद में आउट ऑफ द रिमेनिंग टू ऑपोजिट फेसेस, तो ये वाला और इसके पीछे वाला, इसको हम लोग ग्रीन ले लेते हैं, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, सॉरी ग्रीन, ठीक है, ग्रीन है। द क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉल क्यूब्स, ओके, मतलब क्या है, एक फेस पे कितने कट आने वाले हैं, ठीक है, 1 2 3 4, चार कट ऐसे आएंगे, चार कट ऐसे आएंगे, ठीक है। यानी कि ऑन द फेस कितना होगा, ऑन द फेस कितना होगा, अगर तुम देखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 5 क्यूब एक रो में है, 5 क्यूब एक कॉलम में है। तो 5 बाय 5 का फेस होगा, विच इज 5 5 25, ओके। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एट मोस्ट, ओके, एट मोस्ट मैक्सिमम 2 साइड्स पेंटेड, यानी कि हम लोग को कौन से निकालना है, यहाँ पे 3 साइड्स पेंटेड निकाल देना है, 4 साइड पेंटेड तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, 3 साइड्स पेंटेड निकाल देना है। 3 साइड्स पेंटेड कहाँ पर है, मतलब जो भी मेरा टोटल होगा, टोटल में से 3 साइड्स वाला जो है वो निकाल देना है, माइनस कर देना है। तो 3 साइड्स पेंटेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो रहा है सामने, यहाँ पे होगा, क्लियर है, दो ही होगा, दो के अलावा और कहीं होने का स्कोप है, नहीं है। 125 - 2, ठीक है, 125 - 2, द आंसर इज 123। आया समझ में, किसी को नहीं समझ में आया है, लेट मी नो। सृष्टि से नॉट इंटरेस्टेड, सृष्टि क्यूब्स का चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नो, क्यूब्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। सृष्टि, आर यू फ्रॉम एमबीएपी, okay, so in whichever group you are there, okay, just put a message asking for the recording of the cube session, okay, so that you will get a lecture on there's a complete 2 hours of recording, okay, which talks about the basics of cubes, okay, उसके अंदर किस तरीके से क्यूब को कट करते हैं, कलर करते हैं, कैसे निकालते हैं, 3 साइड कलर, 2 साइड कलर, वो सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मेक श्योर कर लो, देख लेना, ठीक है। It should be there in the app, okay, in case you don't find it in the app, okay, you can ask it in the group, it should be there in the app, okay। चलो, अच्छा, ये मैं अभी के लिए समझाने के लिए खाली बता देता हूँ, थोड़ा सा बेस दे देता हूँ इसका, ठीक है, कि हम लोग ये कलरिंग तो समझ में आया कि किस तरीके से कलरिंग हुई है, ये कलरिंग समझा, और ये कट समझा, ये क्या हुआ है, जब इसने बोला कि 125 क्यूब्स होते हैं, तो बेसिकली एक फेस पे, एक फेस पे 4 कट लगते हैं, यानी कि ये ऐसे, देखो ये मैंने कट है, ये जो मैं लाइन है ना, कट्स है, कट्स, ठीक है। तो मैंने 4 कट किए तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक कॉलम में 5 है, वैसे ही 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कॉलम में, 5 रो में आए, तो ऐसे ही मैं तीनों फेस पे करूंगा ना, तो टोटल जाके मेरा 125 स्मॉल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। सो अब वहां पे भी 125 है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉर्नर में जो है, यहाँ पे एक क्यूब जा रहा है 3 साइड कलर, यहाँ पे जा रहा है एक क्यूब 3 साइड कलर, तो बाकी टोटल में से इतना माइनस कर दिया मैंने, तो मुझे 123 आ गया, ठीक है। I think this should be clear at least to students who have seen studied cubes before, उनको तो clear होना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए अभी भी शायद थोड़ा confusing होगा, so for them, for MBA students, I can tell you this, okay, this is how you guys can go ahead. चलो, any questions here, anyone, any questions, let me know, meanwhile we are going to the next question. How many small cubes do not have red color but definitely have green color on them, ठीक है, यानी कि रेड नहीं होना चाहिए और डेफिनेटली ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। कैसा था क्यूब, फिर से क्यूब को देखना है तो फिर से देख लो क्यूब कैसा था, क्यूब का ऐसे, ये हमारा क्यूब था, ठीक है, यहाँ पे हमने रेड किया था, यहाँ पे हमने रेड किया था, यहाँ पे हमने ग्रीन किया था, और ये वाला साइड को भी हमने ग्रीन किया था, ठीक है। अब क्या चाहिए, दे शुड नॉट हैव रेड, यानी कि ये पूरा जो रेड वाला है, ये जो पूरा रेड वाला है, ये हमको क्या करना है, ओके, ये हटा देना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या होना चाहिए, डेफिनेटली डेफिनेटली ग्रीन होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो है, ये ग्रीन हमको लेना, इधर का ग्रीन लेना, यानी कि टू फेसेस पे ग्रीन है, ठीक है, टू फेसेस पे ग्रीन है,
टू फेसेस में जो ग्रीन है उसका टोटल वैल्यू कितना है, कितना क्यूब आ रहा है? एक फेस पे कितना था? 25 था, अभी हमने देखा एक फेस पे 25 था, यानी दो फेस पे कितना हुआ ग्रीन के? टोटल 50 हो गया। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो यहाँ पे एजेस में होगा, एजेस में जो होगा वो उस पे रेड कलर भी आ रहा है, मुझे रेड नहीं चाहिए, तो मुझे उतना माइनस करना पड़ेगा 50 में से। ठीक है, उतना मुझे माइनस करना पड़ेगा 50 में से। तो लेट मी गिव यू अ वेरी, अरे यार, ठीक है, आई ड्रॉ द डायग्राम अगेन। गुड वन, आंसर इज 32 पीपल आर क्रैकिंग इट, गुड वन। ठीक है, सो इफ वी जस्ट डू इट, अभी यहाँ पे जैसे मैंने कट किया ऐसा, यहाँ पे जो मेरा कट है ऐसा, यहाँ पे जो मेरा कट है ऐसा, यहाँ पे जो कट है ऐसा। ठीक है, तो मैं एक एक जगह का दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक एच का दिखा रहा हूँ, बाकी एच का हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे जो आएगा ऐसा, जो यहाँ पे जाएगा ऐसा। ठीक है, ये पूरा इसमें ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे सही रेड, यहाँ पे रेड है, और रेड वाला हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं देखोगे ऐसे, तो कितना हो रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 आ गए कॉलम में। रो में चेक करोगे, रो में भी 5 ही है, लेकिन ये वाला पार्ट कॉमन है। तो यहाँ पे कितना हुआ, इस एज से हमारा टोटल 9 माइनस हो रहा है, टोटल 9 माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही इस यहाँ से भी कितने निकलेंगे, यहाँ से भी 9 निकलेंगे। तो 50 में से मुझे कितना माइनस करना पड़ रहा है? 18 माइनस करना पड़ रहा है, तो आंसर मेरा 32 आएगा। इज इट क्लियर? एटलीस्ट फॉर पीपल who have studied cube before, उनको तो क्लियर होना चाहिए। जस्ट पुट मी अ क्विक yes guys if you are clear with this, put me a quick yes if you guys are clear, if not okay let me know। क्या बात है, आई थिंक किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है क्यूब। ओके, आर यू क्लियर विद द 50 वाला फिगर गाइस? आर यू गाइस क्लियर विद द 50 वाला फिगर? पुट अ yes for that if you guys are clear with the 50 वाला फिगर। Okay, I think okay then there I think is 50 वाला point is not clear, then I think cube का basic concept clear नहीं होगा अभी तक। ठीक है, how many of you who have attended cube before? क्यूब का क्लास किस किसने किया हुआ है? एटलीस्ट आज के सेशन के बाद वो चीज़ तो क्लियर हो जाएगी हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। पीपल who have worked on cubes before? Oh, okay. I think that is the core reason why people are not understanding here. Okay, because तुम लोग का क्यूब, तुम लोग का बेस भी क्लियर नहीं है, वरना इसलिए तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कितने कट्स कैसे होता है, 3 एक्सिस पे कट आता है, ऑल ऑफ दैट। सो गुड रियलाइजेशन हियर फॉर पीपल हु हैव नॉट अटेंडेड क्यूब सेशंस बिफोर। मेक श्योर दैट कि तुम ये क्यूब देखो, ये जो मैं चैप्टर के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एटलीस्ट ले लो। एनालिटिकल रीजनिंग में ये सारे आ सकते हैं, कैलेंडर पूछा जा सकता है, क्लॉक्स पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये क्यूब पूछा जा सकता है, ये सब आएगा एनालिटिकल के अंदर। तो देयर अ वेरी हाई चांस कि इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाए, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब में से। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सबका सब तीनों का तीनों आएगा, कुछ भी एक आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, बट मेक कोशिश करो कि इसको पढ़ के जाओ। ठीक है, चलो विल गो अहेड ऑन दिस। जस्ट अ मिनट। आई थिंक नंबर सीरीज है ये, अभी हमने देखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग भी देखी हुई है। ठीक है, एक ये देख लेते हैं हम लोग, ये टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। व्हाट द आंसर हियर एनीवन? सिंपल है, बहुत सिंपल है। बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट पहला वाला लाइन पढ़ के ही आंसर आ जाना चाहिए एक्चुअली। पहला वाला लाइन क्या दिया है? एटीएम हैज अ क्यूब ऑफ अ नंबर इन
थर्ड प्लेस पे देखो ये 8 है, 6 है, 4 है, 4 है, क्यूब चाहिए था अपने को थर्ड प्लेस पे, तो क्यूब तो सिर्फ 8 ही है, ठीक है। तो पहला वाला टर्म पढ़ के ही आंसर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, ऑलराइट, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन नाउ, 2-3 क्वेश्चन तो सीक्वेंस पे आना ही आना है, ठीक है। इसको हम लोग को फटाफट करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमका हमारा राइट लेफ्ट के जो है वो सब चीजें एकदम सॉर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे if all the vowels in the given sequence are removed, okay, vowel को हटा दो, then which letter will be the eighth letter, okay, to the right of the fifth of the left of the 10th letter from the right, okay। इसको रीड करने का तरीका क्या है, बेस्ट है रीड फ्रॉम बिहाइंड। ये हम से सेम चीज करते हैं ब्लड रिलेशन के इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन में भी, ओके। रीड फ्रॉम बिहाइंड, रीड फ्रॉम बिहाइंड मतलब 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, ओके। ये राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, ठीक है। हम लोग को वॉवेल्स को हटा के काउंट करना है, ठीक है। 10th फ्रॉम राइट एंड देखेंगे अगर कौन सा है, तो ये देखो, ये मैं ऐसे चाहिए तो वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ, 1 2 3, ओके, 4 5 6 7 8, ओके, 9 and 10, ओके। तो 10th लेटर फ्रॉम द राइट इज सी, ओके। दिस, इसका क्या करना है, फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट, यानी कि अभी और ले आना है, फिफ्थ में जाना है, तो 1 2 3 4 5, ओके, ये एम आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या, एट लेटर टू द राइट, अभी राइट लेना है एट में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दैट इज द आंसर, आर, ठीक है। सो बस ये है कि यू हैव टू बी, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी गुड इनफ, ओके, टू क्विकली डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। व्हाट हैपेंस इज कि, और ये सारी चीजें मेरे हिसाब से मॉक में जितना करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज ये सारी चीजें मॉक में ही अच्छी होती हैं, ठीक है। ये सब चीजें अगर हम लोगों ने मॉक में नहीं किया है तो यहाँ पे मतलब, बिकॉज इसके अंदर इजी था, नो ब्रेनर क्वेश्चन, ऐसे करोगे तो ऐसा लगेगा कितना इजी है, ठीक है। बट मॉक में टाइम लिमिट में कभी कभी हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान देना है। चलो, in the given sequence how many letters appeared more than once, बता दो भाई फटाफट, ठीक है, बता दो फटाफट। ये वो ओ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए दिख रहा है, ठीक है, सी भी कई बार आया है, देखो ये हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ जहाँ जहाँ आया हुआ है, ठीक है। आर दिख रहा है मुझे, यहाँ भी आया हुआ है, ठीक है। तो चार हो गए अब तक, क्योंकि और भी हैं, मतलब जो एन दिख रहा है मुझे, एफ तो नहीं दिख रहा है, आई दिख रहा है कई बार, ठीक है। आर हमने कर दिया है, यू मुझे नहीं दिख रहा है, ओके। ऑलराइट, और कोई है, और भी कोई होगा, ओके, लेट अस चेक मोर। यस, टी है, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। इसके अलावा so you have u also which is there, but have you counted u before? So मैं ऊपर एक बार कर देता हूँ, ठीक है। ये है, सी है, लेफ्ट साइड से देखते हैं, आई है, ओ है, आर है, 4 1 5 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, और एम भी है 2 जगह, 8 हो गया, आई थिंक 8 ही है, राइट। इसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा है कोई, एस भी नहीं है, एम सी टी यू ए एन आर आई को भी हम कर चुके हैं, परफेक्ट, ठीक है, 8, ठीक है। चलो, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ, अब हमने सीक्वेंस, हमने एनालिटिकल बेस देख लिया, हमने सीक्वेंस का थोड़ा आइडिया ले लिया क्या है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत प्लेन अपना जो नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जो डायरेक्शन या इस तरीके का कुछ भी पूछा होता है, मैं हमेशा कैसे सॉल्व करता हूँ, उसके पीछे कोई डायग्राम एकदम बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट चेक करो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में जो ईस्ट साइड जाता है, ठीक है, ईस्ट को हम पॉजिटिव लेते हैं, जो वेस्ट में जाता है उसको नेगेटिव लेते हैं, वैसे ही हम नॉर्थ में जो जाता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, साउथ में जो जाता है उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो
तो मुझे प्लस माइनस से के बेसिस पे मुझे अपना डायरेक्शन या डिस्टेंस जो भी निकालना हो मैं निकाल लूंगा, ठीक है। चलो, हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर 10 किलोमीटर ईस्ट है, हॉरिजॉन्टल में +10 होता है, ठीक है ना। ईस्ट साइड जा रहा है, ओके, देन टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स हिज राइट, ओके। अब ईस्ट साइड जाके राइट में जाएगा तो कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा इन शॉर्ट, ओके। तो साउथ में जा रहा है -5, ओके, साउथ में -5 जा रहा है, ओके। देन टेक्स अ 90 डिग्री टर्न, ओके। अब ये टर्न ले रहा है 90 डिग्री, तो ये कहाँ जाएगा, ये अब ये वेस्ट के साइड जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया +5, ये हो गया -5, प्लस मतलब क्या हुआ, ईस्ट, ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ, साउथ ईस्ट में आंसर होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के नाम पे भी देखोगे, जहाँ पे तुमसे रिसर्च ना कर लो तो भी आ जाएगा, पूरा पूरा सॉल्व करने का जरूरत या डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Srishti sir, again this one, okay. Srishti, you have to be good with the this part. कि someone moving north, okay, उसका right ये है, left ये है. Someone moving south, उसका right ये है, left ये है. Someone moving east, okay, उसका right ये है, left ये है. Moving west, okay, उसका right ये है, left ये है. ये जरा ध्यान में रखो, ये वाली चीज तुमको पता होना चाहिए, एकदम मतलब दिमाग में बहुत फटाफट आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मुझे दिया था कि टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है 10 किलोमीटर, तो हॉरिजॉन्टल में मैंने +10 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे तुमको, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे दिया है कि टुवर्ड्स ईस्ट ये 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो ये +10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब टुवर्ड्स ईस्ट के बाद ये कितना, ये टुवर्ड राइट टर्न लेता है, जब राइट टर्न लेता है ईस्ट में जाने वाला बंदा, तो कहाँ जाता है, साउथ में जाता है, नीचे की तरफ जा रहा है, देखो, ठीक है। साउथ में जाएगा तो -5 कर दिया मैंने वर्टिकल में, ठीक है। 5 किलोमीटर जा रहा था, तो वर्टिकल में -5। अच्छा, जब ये साउथ जा रहा है फिर ये राइट टर्न लेता है, जब ये राइट टर्न लेता है तो कहाँ जाएगा, ये वेस्ट की तरफ जाएगा, और वेस्ट मतलब माइनस है 5 किलोमीटर, तो ये +10 था, फिर -5 हो गया, तो इसका कितना होगा टोटल वैल्यू, ओके, +5 होगा। ये तो -5 एज इट इज है, तो प्लस मतलब ईस्ट, माइनस मतलब साउथ, साउथ ईस्ट। आया समझ में सृष्टि, क्लियर है, ओके। और सीटिंग अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मेरे हिसाब से तो ये कई बार किया होगा। सीटिंग अरेंजमेंट है और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, बहुत ही इजी वाला है। चलो, टेल मी द आंसर फॉर दिस, टेल मी द आंसर फॉर दिस। 8 है, 8 लोग बैठे हैं ऐसे, ठीक है। 8 people A B C D E F G and H are sitting on 8 chairs symmetrically around a circular table equidistant from each other. All of them facing towards the center. Some information is provided to you. C F is sitting exactly opposite C. ठीक है, तो कहीं से भी स्टार्ट करो, तो F यहाँ पर है, C यहाँ पर है, ऑपोजिट करना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे उससे रिलेटेड क्लूज देखो, देखो यहाँ पे D is not next to F, ओके, तो यहाँ पे D नहीं आएगा, डी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कर दिया हमने, ओके। एच इज ओनली सिटिंग बिटवीन जी एंड सी, ओके। तो यहाँ पे सी है, ओके, जी और सी के बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पे और एक तरीका ये है कि जी को यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, सॉरी, एच को यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, और जी को यहाँ पे रख दिया मैंने, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एच को यहाँ रख दो, जी को यहाँ रख दो। मैं दोनों ट्राई करता हूँ, जो सही है बैठ जाएगा, जो नहीं है उसको हटा देंगे, ठीक है। चलो, ये भी मैंने कर दिया है। E is sitting 2 places the right of B, ठीक है, एंड इज नॉट नेक्स्ट टू F। तो नेक्स्ट टू F नहीं, यानी कि यहाँ पे E नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है, E is sitting 2 places the right of B, ओके। तो B अगर यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, ओके, 2 to the right of, ओके, राइट अपना ऐसा जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2, ओके। तो अगर B यहाँ पे आया, ओके, तो E यहाँ पे आना चाहिए, वो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं B को रखता हूँ तो E यहाँ पे आ जाएगा, वो पॉसिबल है क्या, वो भी नहीं पॉसिबल, तो यहाँ पे B भी नहीं आ सकता, तो ये दोनों जगह B हट गया। अब अगर मैं B को यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है, तो E यहाँ पे आ जाएगा, विच इज पॉसिबल, ओके, विच इज पॉसिबल, ऑलराइट। अगर यहाँ पे आया तो H और G यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब, ठीक है, अब पॉसिबिलिटी समझो, पॉसिबिलिटीज क्या है। मैंने बी को यहाँ पे रखा, ठीक है, अगर मैंने बी को यहाँ पे रखा तो तुम्हारा यहाँ पे 2 छोड़ के, ओके, यहाँ पे क्या था, ई आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 1 2 नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगा ना, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है,
ओ अच्छा, यहाँ तो एफ है, ठीक है, यहाँ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ भी नहीं आ सकता है, तो यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, बी के ये तीन पोजीशंस नहीं है, बी यहाँ पे नहीं आ सकता है। ऑलराइट, तो मुझे बी को यहाँ पे हम करेंगे। आई थिंक दैट द ओनली पोजीशन, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ई आएगा, और ये पॉसिबल है, ठीक है। आई थिंक उसके अलावा और कोई पोजीशन ही नहीं है, तो जब वो पोजीशन नहीं है तो आई थिंक बाकी सब अपने आप ही मिल गया तुमको। तो ये सब हटाओ फटाफट। जी और एच हमको मिल गया, उस तरफ है, तो यहाँ पे जी आया है, यहाँ पे एच आया है, ठीक है। और आई थिंक नाउ इट इज ऑल क्लियर। ओके, यहाँ भी हो गया, ठीक है। दिस इज द पोजीशन, ओके, दैट वी आर हैविंग। एच इज सिटिंग बिटवीन, ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट, ओके, ये भी हो गया। आई थिंक व्हाट इज लेफ्ट, दो चीज बची हुई है, ए बची हुई है, और ए बी सी डी बचा हुआ है, ठीक है, डी बचा हुआ है, ठीक है। अब डी यहाँ यहाँ तो नहीं आएगा, यदि यहाँ नहीं आ सकता तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, which of the following is the correct option position for H? Okay, H का क्या है? H is ऑप्शन नंबर 3 कैसे हो रहा है? ऑप्शन नंबर H का यहाँ पर दिया हुआ है, so which of the following is the correct position of H? Why is it not? Are we missing on something? अरे मैंने तो क्या, अरे मैंने उल्टा लिख दिया। H इज, हाँ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, H और G। H is only sitting between G and C. Perfect. हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, who is sitting exactly opposite A? Exactly opposite A is E. Which of the following statement is not correct? चलो बताओ, कौन सा नॉट करेक्ट है? अभी पोजीशन बनाया हुआ तुम लोगों ने। I'll have to go back to the diagram. What is the answer here? नॉट करेक्ट चाहिए फटाफट। Only Srishti is answering. Others? क्या भाई, इतना आंसर आने में टाइम क्यों लग रहा है? B is to the immediate right of F. Is that right? Okay, B is to the immediate right of F. Okay. It's not correct अगर पूछा है, ठीक है। B is to the immediate right. Yes, ये तो right है, ठीक है। G is sitting two places to the left of F. Okay. Left of F देखेंगे, G है, बराबर है, ये भी correct है। There are only 6 persons whose sitting positions can be exactly determined. Okay. 6 persons. All of this, okay. This is not there. We can find people of position of all the 8 people. तो ये not correct है, ठीक है। चलो, ब्लड रिलेशन भी एक देख लो फटाफट। आई थिंक फॉर ऑल दिस यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड वेल। मेजरली जो मैं आज हाईलाइट और जिस चीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज करना चाह रहा था वो एनालिटिकल रीजनिंग है, बिकॉज दैट इज द एरिया वेयर पीपल यूजुअली go wrong. हाँ भाई, देयर आर 6 people A B C D E F, ओके। अब C इज सिस्टर ऑफ F, तो C जो है वो सिस्टर है इसकी, F की, ठीक है। B is the brother of E's husband, okay, so B is the brother of E's husband. ये E आया, E का husband, ठीक है, ये ब्रदर हो गया। ऑलराइट, ये है D is father of A, okay, D is father of A,
एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, अच्छा ये एफ यहाँ पर है, एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, तो यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है, एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, ठीक है। अब ऐसा आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे ये सारे चीजों का मुझे मर्ज करना है, ठीक है। हमेशा मैं इस तरीके के डायग्राम में ये था कि मैं मर्ज मर्ज करो, ओके तो वो बताओ, ठीक है। मर्ज कैसे करेंगे, अब ये सी आ गया, चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे सी लगा दो, यहाँ पे सी लगा दो। अच्छा अब ये सी आया, अब ये कहाँ पे जाना चाहिए, ये चीज जो है तुमको ये सी है, सेकंड जनरेशन में फिट होगी है, ठीक है, सेकंड जनरेशन में फिट होगी, तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे ये ई को कर दो, यहाँ पे ये बी आ गया, ठीक है, राइट, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देयर आर टू फादर्स, तो एफ और डी टू फादर्स हो गए, ठीक है, एफ और डी टू फादर्स हो गए, देयर आर थ्री ब्रदर्स, ओके, थ्री ब्रदर्स कौन है, बी ब्रदर है, डी ब्रदर है और एफ ब्रदर है, ठीक है, सी का ब्रदर एफ है, तो थ्री ब्रदर्स हो गए, एंड अ मदर, मदर इज ई, ओके, ई इज अ मदर, ओके, सो हाउ मेनी, क्या दिया, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, जी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर है, तो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे वन टू एंड थ्री, ए का जेंडर हमको पता है क्या, ए का जेंडर हमको नहीं पता है, ए का जेंडर हमको नहीं पता, ठीक है, तो आंसर इज, हाँ चलो ये थोड़े बहुत विजुअल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। आशीष जल्दी में आंसर गलत मार्क कर दोगे तुम ऐसे। ओके द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे क्या आएगा, बस ये चाहिए, जो लाइन है वो देखो पूरा जाती है, देखो यहाँ पे पूरी नहीं जा रही, यहाँ भी पूरी नहीं जा रही, देखो यहाँ पे पूरा जा रहा है, ठीक है। हाँ विजुअल रीजनिंग ये भी है, देखो पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अच्छा ओके सॉरी आशीष। हाँ पेपर फोल्डिंग, विजुअल रीजनिंग अगेन। अब यहाँ पे उन्होंने होल्ड, यहाँ पे उन्होंने पंच किया ये होल, अब जब इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये पूरा ऐसे गोल हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे डबल आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ठीक है। नो हर्षल, फर्स्ट नो इज नॉट द आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वो चार हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जब पूरा ओपन कर देंगे तो ऐसे आठ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थ्री है, एट एट। अंडरस्टैंड, फिर से देखो यहाँ पे रफ शीट में इसको डायग्राम बनाने की जरूरत क्या है, यहाँ पे विजुलाइज करो ना, विजुलाइज विजुलाइज करो इसको, यहाँ पे डायग्राम का बनाते बैठोगे, ठीक है। तो ये यहीं पे जब तुमने यहाँ पे ओपन किया तो ये पूरा, ये आधा है, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, जब तुमने यहाँ तक ओपन किया, ठीक है। फिर जब बड़ा करोगे तो डबल हो जाएगा, फिर यहाँ पे चार हो जाएगा, फिर यहाँ पे चार का डबल आठ हो जाएगा, तो एट यहीं पे आ रहा है, देखो चार ऊपर चार नीचे, ऑप्शन नंबर थ्री। डायग्राम नहीं, फोल्ड करके फाड़, क्या पेपर फोल्ड फाड़ के फाड़ोगे 30 सेकेंड्स में, और वहां पे पेपर कौन देने वाला है तुमको एग्जाम में हर्षल, नो यू हैव टू विजुअलाइज ऑल दिस, ठीक है। एवरीवन क्लियर, किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर। So for MBAP students who are there, okay, you guys have this in your ebook, okay, अपने ebook बेसिक ebook में जाओ, तुमको लॉजिक के सेक्शन में यहाँ पे विजुअल रीजनिंग दिखेगा, okay, from there you can practice a lot, okay, there are a lot of questions there that you can practice it from there। चलो, स्नैप का क्रिटिकल रीजनिंग इजी लेवल होता है यार, ये बहुत, स्नैप का क्रिटिकल रीजनिंग इजी लेवल होता है, चलो इसका आंसर फटाफट बताओ मुझे अभी। हाँ ये दिया तो है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नंबर वन है, स्टेटमेंट नंबर टू है,
हर्षल, अजरुद्दीन, क्लोज कब हो जाए होएगा सर? क्लोज कब होएगा मतलब लेक्चर कब क्लोज होगा? लेक्चर इज देयर, क्रिटिकल रीजनिंग द लास्ट पार्ट, आई थिंक वील हैव few questions on this. Okay, I think 5-10 मिनट और चलना चाहिए. हाँ भाई, आर्ग्यूमेंट्स. नेहा सेज ओनली टू इज स्ट्रांग. यहाँ पे स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो रीजन दिया हुआ है तुमको, जो रीजन दिया है उसको तुम बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहिए. अगर तुम स्ट्रांगली सपोर्ट करते हो देन इट इज फाइन. ओके, अगर तुम स्ट्रांगली सपोर्ट करते हो देन इट इज फाइन. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्टडीज हैव शोन, यानी कि रिसर्च कुछ हुआ है. स्टडीज हैव शोन दैट ब्रीदिंग इन वेहिकुलर पोल्यूशन reaches dangerous level when the exposure to such pollution has been made more than 5 hours a day. ना यहाँ पे क्या दिया है कि तुम्हारा पोल्यूशन लेवल जो है, ओके, ब्रीदिंग जो है वो ऐसे पोल्यूशन में बहुत डेंजर लेवल में पहुंच जाती है. कब पहुंचती है? जब आप 5 घंटे तक रहते हैं यहाँ पे एक्सपोजर रहता है आपका. अच्छा, कैसे पता चला? ये पता चला आपको कुछ स्टडीज थे. तो ये रीजन कि आपके स्टडी थी, इसके ऊपर आपने किया तो आपको पता चला. तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग दिस थिंग, ओके, अबाउट दिस थिंग कि भाई आर्ग्यूमेंट जो है वो यस है. ओके, बेस्ड ऑन दिस. ऑलराइट. वैसे ही ओके, नो ब्रीथिंग इन वेहिकुलर पोल्यूशन ओके फॉर मोर देन 5 hours a day does not lead to lung cancer, okay, as was revealed in a study to analyze the effect of vehicular problem. Now here what the problem is that they are saying that ki breathing यहाँ पे breathing in vehicular okay for no more than 5 hours does not lead to lung cancer. तो ठीक है भाई, vehicular pollution से lung cancer नहीं हो सकता है, ठीक है. बट हमको ये पता है कि वेहिकुलर प्रॉब्लम से, पोल्यूशन से प्रॉब्लम तो जरूर हो सकती है, ये नहीं तो कुछ और प्रॉब्लम होगा. लंग कैंसर नहीं होगा तो कोई और प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, तो ये स्टडी ने ये बताया है कि लंग कैंसर नहीं होगा. but that does not mean okay that breathing in vehicular pollution okay is not is not dangerous. So this is a weak argument. The second one is a weak argument. Okay, because second one, what they are saying, they are only generalizing it to one problem, but there are other problems related to it. Okay, there are other problems related to it. Okay, pollution any day is not going to be good. Okay, vehicular pollution for long hours, 5 hours and all that is not going to be good. Okay, so yes, in this case only one is strong. Okay, second is not strong. Neha, are you clear with the explanation that I gave you? Because in the second one they are only boiling down to the to lung cancer only, and based on that you cannot generalize it and say that कि नहीं, breathing in vehicular is more than 5 hours lung cancer नहीं होता तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है, so only one is strong here. क्लियर है? चलो, alright, we have two more questions. Okay, फटाफट करते हैं. बहुत ही सिंपल है ये वाला भी, बहुत ही स्टैंडर्डाइज वाला क्वेश्चन है. अदर्स. यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3. गुड वन गाइस, गुड वन. ठीक है, अगर हम देखेंगे तो दोनों से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, बट हम दोनों चीज साथ में नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे कहीं स्लम स्लम दिया हुआ है कि गवर्नमेंट हैज स्टेट वाइज डिसाइड टू रिमूव द हटमेंट्स ओके दैट हैव कम अप ओके बिसाइड द रोड टू ब्रॉडन द रोड. तो हमें रोड बढ़ाना है, तो हटमेंट को क्या करेंगे हम? ठीक है, ऑब्वियसली हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे द अफेक्टेड हटमेंट्स. ओके, एक ये चीज है. रिहेबिलिटेट का मतलब है कि एक जगह से हटा के उनको दूसरी जगह पहुंचा देंगे, भाई आप वहां पे जाके रहो. दूसरा तरीका क्या है, तो गवर्नमेंट शुड कंपेंसेट, यूज पैसा दे दे उनको कि सो दैट दे कैन गो एंड स्टे समवेयर ओके, अपना हिसाब किताब कर ले वो लोग एंड ऑल दैट. बट विल द गवर्नमेंट डू बोथ द थिंग्स?
कि पैसा भी देगी कि कहीं और जाके रहो, और फिर जाके कहीं और भिजवाएगी भी, रिहेबिलिटेट भी करेगी, सामने से फ्री में घर देगी। नहीं, ये दोनों चीज नहीं होती है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज करेगी गवर्नमेंट। दैट्स व्हाट इज ईदर, ओके, या तो ये या तो ये, एंड बोथ आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ पे मेरा ऑप्शन होता ना 1 and 2, तो वो भी मेरा रॉन्ग ऑप्शन होता, बिकॉज बोथ द थिंग्स विल नॉट हैपन। ओके, द कोर्स ऑफ एक्शन इज कि अगर हम दोनों चीज देखो, दैट्स नॉट राइट, ठीक है, इट इज, दैट्स व्हाट इट इज ईदर, ईदर 1 or 2। चलो, क्रिटिकल रीजनिंग, ये क्या है, अजम्पशन वाला क्वेश्चन है। अच्छा, और जिन्होंने अगर क्रिटिकल रीजनिंग का थोड़ा कंफ्यूजन एंड ऑल दैट, ओके, तो वही चीज है, तुम्हारे रिकॉर्डिंग देखना है, वहाँ पे बेसिक में इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे सोचना चाहिए इन सब टॉपिक्स के ऊपर। अगर वो हमने एक बार का कर लिया तो हमारा शॉर्ट हो जाएगा फिर। Some have suggested a correlation between not wearing polished shoes and being lethargic. And those who don't polish their shoes are generally lethargic than those who do. How this, however, is not the case. I work at the employment exchange, okay, and the majority of applicants, okay, have polished shoes. Which of the following assumption is made by the author of the argument? बताओ भाई। यहाँ पे कहीं भी बिहेवियर की कुछ बात हो रही है क्या? ज्योतिष, सृष्टि, यहाँ पे कुछ भी बिहेवियर की बात हो रही है क्या? साहिल, फैमिली बैकग्राउंड की कहाँ बात हो रही है? फैमिली बैकग्राउंड की कहाँ से बात हो रही है? मोर पीपल। नेहा, क्या आंसर आ रहा है? सिद्धांत, व्हाट्स द आंसर? निकिता? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 4। देखो भाई, क्या बोला तुमको, अच्छे से समझो, ठीक है, अच्छे से समझो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दोज हु डोंट पॉलिश देयर शूज आर जनरली लेथार्जिक, यानी कि डोंट पॉलिश, ओके, मैं ऐसे डीपी लिख देता हूँ, डोंट पॉलिश, यानी कि जो डोंट पॉलिश करता है वो क्या है, लेथार्जिक है, ठीक है। however this is not the case, however is not the case, this however is not the case, यानी कि ये जो बोला गया है ना, ठीक है, कि जो पॉलिश नहीं करता है वो लेथार्जिक होता है, दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज रॉन्ग, ये जो उन्होंने बोला ये रॉन्ग है। ये किस बेसिस पे बोला होगा, ठीक है। आई वर्क एट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ओके, एंड मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेंट्स हैव पॉलिश देयर शूज, यानी कि पॉलिश किया है तो भी लेथार्जिक है, बिकॉज उन्होंने क्या बोला, डोंट पॉलिश लेथार्जिक इज रॉन्ग, यानी कि राइट क्या है, पॉलिश है तो भी लेथार्जिक हो सकता है। एंड दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट इन द फोर्थ स्टेटमेंट इज टेलिंग यू, पीपल हु अप्लाई, अप्लाई का मतलब ये एप्लीकेंट अप्लाई, people who apply for employment and employment exchange are lethargic. This is what it means when he said that however is not the case। देखो, ये एकदम क्लियर वाला पार्ट था। तो यहाँ पे साहिल फैमिली बैकग्राउंड की कहाँ पे बात की हुई है, लर्नेड बिहेवियर्स की कहाँ पे बात की हुई है, ये तो इररिलेवेंट है ना, ये दोनों भी इररिलेवेंट है, ठीक है। सो इसके लिए तुम देख रहे हो, फोर्थ वन इज द आंसर हियर। साहिल, इज दैट क्लियर? ज्योति, इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? Neha, have you taken a lecture on clocks? Okay, I'm not sure clocks का lecture मैंने लिया है कि नहीं लिया है। I mean for your batch, वैसे मैंने clocks का lecture तो लिया हुआ है। But in case clocks तुम्हारा नहीं हुआ है, you have that in the basic recorded video in fonts.
पॉइंट्स के अंदर देखना, तुमको क्लॉक का वीडियो वहाँ पे है लेक्चर का, वहाँ पे देख लो एक बार, ठीक है नेहा? You will find it. In case you don't find it, okay, let me know. All right, so we have covered okay all the variety okay and all that. Again, I have highlighted certain things. Okay, so make sure कि तुम्हारा cubes, calendar, okay, clocks ये अच्छा होना ही चाहिए. इसके अलावा तुम्हारा नंबर क्रंचिंग का जो है ओके वो बहुत अच्छा होना चाहिए. नंबर क्रंचिंग मतलब क्या है? 30 minutes 60 कैलकुलेशन. कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. मेक श्योर दैट योर क्यूब स्क्वायर ओके मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ओके ये सब चीज बहुत अच्छे से आ रही है. Because that is the point of difference. Okay, I'm talking about the people who are going to clear, who are not going to clear the cutoff. उनका मेजर डिफरेंस जो होता है ना वो एनालिटिकल रीजनिंग होता है. देखो तुमने भी लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट कर ही लिए थे तुमने. ठीक है. ब्लड रिलेशन वाला कोई कोई बड़ी चीज नहीं थी, तो सिटिंग अरेंजमेंट कोई बड़ी चीज नहीं थी. ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो तो जनता राइट करके आएगी ही आएगी. ठीक है. बट एनालिटिकल रीजनिंग में लोग थोड़ा मार खाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा मार खा लेते हैं, वहां पे तो अच्छे से करके आओ. ठीक है. So can you help us tell how many should we write section wise? Acha, Harshal, I put that in one of my videos also on Snap, okay, where I mentioned that LR target score should be 18, okay, Con's target score should be around 10, okay, and verbal target score, okay, should be around 8, okay. तो इस तरीके से टारगेट करो. ओके, यहाँ पे तुम 10 से लेके 12 करो, यहाँ से 8 से लेके 10 करो. ठीक है. तो तुम्हारा सेफ स्कोर आराम से 40 पहुंच जाएगा. वरना तुम 38 के आसपास रखोगे. 38 अगर हमने किया तो हम बॉर्डर लाइन पे रहेंगे. ठीक है. कोशिश करो कि 40 टच कर दो. So important topics in Snap for cons. I think I have given you that. I have shown that in the video. This thing. Okay, just a minute. I'll share that PPT. Just a minute. Roman number exercise, I think, Sahil, I have not seen much of those questions coming in Snap exam. All right, so check this. So this is so someone was asking me, Shrishti, look at the important topics for Snap. Okay, ये मैंने भेजा था अभी वीडियो में, पर ये तुम चेक कर लो यहाँ पे. ये सारी जो DI है खास तौर से वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, तो ये सारी चीजें कौन से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बाकी नीचे वाली चीजें भी करनी है, ऐसे नहीं कि नहीं करनी है. ठीक है. एंड ऑल दैट. Harshal, this is the second slide. All right. Sahil says Roman number exercise, right? 348 in Roman numericals. Okay. You're saying that that is there in every mock. I'll check that. Okay, Sahil. बट मुझे तो वैसे वो ज़्यादा जो हमारे पहले के स्नैप के ये हैं पेपर्स हैं. ठीक है. जो दिए थे हम लोगों ने उसके अंदर तो ज़्यादा दिखा नहीं था. ठीक है. दैट्स व्हाई. आई चेक. आई गेट बैक टू यू ऑन व्हाट्सएप. All right. Any more questions, guys? Any more questions? All right. So I think with these three sessions on Snap that we have taken, okay, where we have covered okay the focus areas, at least you get a refresher on what all things you're supposed to work. Okay. ऐसे ही verbal ने का भी हुआ था, cons GI का भी हुआ था. Okay. So make sure that you guys are working on these things in these final days.
एंड डेफिनेटली वंस द फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो 20th को हो रहा है, एक बार ये चीज सामने आ जाए फिर हम लोग और अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। मेक वीडियोस ऑन दैट, ओके, so keep following that so that you can get it, okay. Whether you're going to attempt RC depends on your reading speed. If your reading speed is good, again your accuracy is good, you can definitely do that. अगर उसका आरसी का कंपेंसेशन किसी और चीज के साथ करना है तो दैट इज ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ओके। सो इनफैक्ट ये मैंने अपनी स्लाइड में डाला भी है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आरसी ग्रामर और पैराग्रामर रखा है मैंने, लेकिन उसका कंपेंसेशन ही ये है कि वोकैबुलरी ग्रामर से करो। तो अगर वोकैबुलरी ग्रामर अच्छी कर ली है तो तुम आरसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, और अगर ग्रामर और वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो तुमको आरसी पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है आशीष। All right, all the best, guys. Okay, keep pushing yourself. Okay, start giving, at least give more and more mocks so that you guys are up to the mark, okay, with regards to the snap preparation. All the best. Bye bye. Good night.